So let's go for next topic, that is Compton effect. Again, Compton effect is a very famous experiment, and it is done by James Compton. I think his name was that. And it is this experiment also conclude finally that that light is made up of particle with photon, with its name as photon. So first, let's see what is Compton effect, what is experiment, and how this classical theory of electromagnetic wave is not going to explain it. And we will also try to see how this Compton effect and photoelectric effect are different. In spite of that, in both the case, what will happen? The light is going to interact with the electrons. Okay, ये हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना? So let's see what will happen. So I am just making the schematic diagram. So you can just assume there is a electron, and this electron is assumed to be free. Why it is assuming, we are assuming free, we will discuss it. And we are just imparting the X-ray on this particular electron. And we are just trying to, and we are just putting the detector D on different angle. So we are just putting the detector D at different angle, and we are trying to we are trying to just take the intensity of light. What are the intensity of light? So what is actually happening here? Hence, this electron is free. And why we are considering this electron is free, in spite of it is in some, it is bonded in some metal, because we are imparting the X-ray, and the energy of X-ray is all about किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? एनर्जी जो एक्सरे की है वो कितनी है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. सो दिस एनर्जी इज वेरी वेरी हायर देन एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, which is bounded whatever we have done into photoelectric effect. Photoelectric effect में एनर्जी हमारी किस रेंज में हम इंपार्ट करते थे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में. सो बाउंडेड एनर्जी is also range of incoming energy of light. So why वहां पर जो बाउंडनेस था उसकी कुछ वैल्यू थी और वो सिग्निफिकेंट वैल्यू था. नाउ दिस इज ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो उसके रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन की बाउंडेड एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम नजर आ रही है हमें. सो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? विथ रेफरेंस ऑफ दिस एक्सरे, दिस इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी फ्री. आप इस लॉजिक से कन्विंस हो? सर एनर्जी ज्यादा होगा तो उसको फ्री कैसे हम लोग मान सकते? फ्री ऐसे मान सकते हैं कि भाई इसकी जो बाउंडेड है वो बहुत कम है. आर गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी चीज तो लगभग इसकी जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, जो भी आप इसकी एनर्जी दोगे वो, सपोज करो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं. सपोज इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाउंडेड, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज समथिंग ईवी, मतलब आप ये ईवी है, और आपने इस पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी दिया, तो ये वाली एनर्जी तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी ना? जी सर. है कि नहीं? ये एनर्जी लगभग इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, इसकी जो बाउंडेड एनर्जी है. सो व्हाट विल हैपन? वी कैन एज्यूम दैट इट मे बी जस्ट लाइक अ फ्री पार्टिकल, बिकॉज जो इम्पार्टिंग एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंडेड एनर्जी. क्लियर है ये? तो इट इज ऑल अबाउट द रेफरेंस, कि किस रेफरेंस से आपका रेफरेंस है. आर यू गेटिंग इट? अगर सपोज करो, कई बार तो मेगा इलेक्ट्रॉन गामा रे से भी हम इसे कर लेते हैं. सो गामा रे से करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ जाएगी, तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, है ना? सो उस केस में सो इनकमिंग जो एनर्जी होगी इसकी, दैट विल बी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज, वी कैन एज्यूम दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर दिस. ओके, दैट इज वन इशू. And second issue is that we are just trying to find and at some particular phi, so let us, this angle is phi, we are just trying to measure the different intensity at different angle. And what we have seen a very
different kind of situation. We are just trying to plot intensity versus lambda. हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं? इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा एट डिफरेंट एंगल, अलग अलग एंगल पर इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा प्लॉट कर रहा है. What we have seen at 0 degree angle, when it is here, so this is actually 0 degree angle, the intensity pattern is something like this. So it's okay, don't worry, the light will come here, it will go up to this limit, and you have some particular energy and some particular intensity pattern. But what will happen when we are just going to change this angle from the 0 degree? So you can assume this is my reference line and this is 0 degree. Then what we have seen, we are just saying there is peak in two different lambda. यहां पर क्या हो रहा है? पीक मिल रहा है हमें दो डिफरेंट लैम्डा पर, एंड वन लैम्डा विल बी द लैम्डा ऑफ इनकमिंग वेव and another lambda will be higher. So what is this? So this will be, let's say this will be lambda, and this will be, let's say, lambda dash, which will be basically, you can say that another peak will be at the lambda dash, and this peak will be higher than this one, and it is maximum when theta is equal to, or maximum when phi is equal to pi, is pi, means when it is go back, just back scattered, then what we have seen this difference is maximum. So there is some delta lambda for given value of phi. So this is at some phi is equal to not 0. So the question is that why there is two peak? How this two peak is coming? This is biggest question. And yes, the second peak, the intensity of second peak is more than intensity of first peak. So how this is going to happen? So this thing cannot be explained by a classical theory. Let us see if classical theory of Maxwell will work here. I am not saying the classical theory is wrong, because classical theory young double slit experiment देता है, classical theory diffraction pattern देता है, तो वहां पर तो classical theory work कर रही है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पा रहा है, और क्लासिकल थ्योरी यहां कॉम्पटन इफेक्ट को भी नहीं समझा पा रहा है. कैसे नहीं समझा पा रहा है वो देखते हैं. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू गो फॉर इट. सो इफ द इलेक्ट्रॉन, सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री and we are imparting the electric field, which is oscillatory electric field, on this particular electron, then what will happen? This electron will also oscillate in the influence of electric field. होगा ना? Yes sir. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी से, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड है. इन जनरल जो मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम, लाइट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम किया था, दे आर जस्ट अ sinusoidal in nature. So what will happen? If it is going to interact it, then this electron will also interact. This electron will also oscillate. So Yes, sir. if this electron will also oscillate, then it will radiate. Are you getting my point? Yes sir. So ये radiate करेगा, लेकिन जब ये रेडिएट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये किस फ्रीक्वेंसी से ये रेडिएट कर रहा है? सेम फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी से रेडिएट कर रहा है. सो जो भी आपकी आफ्टर द कॉलिजन जो भी आपकी रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और इनकमिंग वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. सेम. एग्रीड? एंड यू विल गेट, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तो फिर आपको पीक एक ही जगह पर मिलना चाहिए. यस, दो अलग अलग लैम्डा पर पीक क्यों मिल रहा है? अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्डा भी सेम है. है ना? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट c अपॉन लैम्डा. सो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्डा भी सेम है, तो ऐसा ही होना चाहिए कि भाई हमें पीक हर एक एंगल पर, फॉर एवरी एंगल वी शुड हैव एग्जैक्टली सेम पीक. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. एंड वी अगर ये क्लासिकल थ्योरी सही होता, if this classical theory is correct, then obviously there should be only one peak.
1. है ना? So this classical Maxwell theory of electromagnetism doesn't basically justify this observation. This is all about the intensity versus lambda at some angle phi, and it is also seen that this lambda is what? This delta lambda is nothing but lambda dash minus lambda, and this delta lambda will be maximum. This is maximum at phi is equal to pi. So this is maximum at phi is equal to pi. So obviously this is very weird experiment. कैसे इसको समझा जा सकता है, कैसे इसको देख सकते हैं, और हम क्या हो रहा है एक्चुअली, जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. यहां तक क्लियर है? मैक्सवेल की थ्योरी क्यों फेल हो रही है यहां पर, है ना? Yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर है ना, एवरीवन? Yes, sir. ओके. सो Yes. मैक्सवेल थ्योरी यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है टू डिफरेंट पीक. ओके, सो व्हाई वी हैव टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो यहां क्या समझा गया और कैसे इस चीज को देखा गया? सो ऑब्वियसली तो यहां पर फिर से फोटोन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, एंड वी जस्ट एज्यूम दैट दिस पार्टिकल हैज सम एनर्जी. लेट्स से दैट एनर्जी इज h nu, and it is just going to collide this particular electron, and after the collision it will just give some energy to this particular electron such that electron can recoil, electron will get some kinetic energy, and the rest of energy and the photon, and then this photon will not give the whole energy to the electron. Are you getting here? ये पूरा का पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं दे रहा है, एंड इट विल जस्ट रेडिएट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, different color of light or different radiation with a different frequency of this one, and the whole Sir, conservation of photoelectric- energy will come into picture. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? सर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूरा एनर्जी फोटोन दे देता है. एग्जैक्टली, इसमें क्यों नहीं बिकॉज यहां पर हम इसे बाउंडेड मानते थे. ठीक है, तो यहां जो था ये इलेक्ट्रॉन को हम बाउंडेड मानते थे, और ये पूरी की पूरी एनर्जी ये एब्जॉर्व कर ले रहा था, क्योंकि दोनों का एनर्जी का रेंज क्या था? एग्जैक्टली मोर और लेस सेम एनर्जी का रेंज था. इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और यहां पर आप इसे फ्री एनर्जी, इसे इलेक्ट्रॉन को आप फ्री मान रहे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप इसे Yes, sir. फ्री मान रहे हो तो ये रिकॉइल कर जा रहा है, तो पूरी की पूरी एनर्जी नहीं एब्जॉर्व कर पा रहा है उस समय तक. सो इसके बाद रिकॉइल कर रहा है, और चूंकि इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, तो फिर रेडिएशन भी निकल करके आ रही है, और वो जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रह रही है. जी सर. ठीक है, सो कैसे इसे हम देख सकते हैं, और किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड दिस इज समथिंग लाइक अ one particle which is just going to collide to another particle. It will just impart some momentum to the another particle, so another particle will recoil, and then you can see that the incoming particle will have some less energy. यही तो होता है ना? मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है इस तरह से कि भाई अगर एक पार्टिकल आ रहा है, ये अपनी मोमेंटम ट्रांसफर करेगा दूसरी पार्टिकल को, तो दूसरा पार्टिकल क्या करता है? रिकॉइल कर लेता है, एंड पहला वाला पार्टिकल फिर दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है ना? ऐसा ही तो होता है. यस सर. और टोटल एनर्जी, अगर ये इलास्टिक कॉलिजन है, देन टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल will be equal to energy of this particle and energy of this particle after the collision, isn't it? यस. है ना? Yes, sir. So this is the whole story we have to create here, और हम देखते हैं कि वो स्टोरी हमें, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं. क्लियर है यहां तक? यस सर. सो लेट्स ट्राई टू Yes, गो sir. फॉर अ डेरिवेशन पार्ट, एंड हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, so let us assume this is incoming wave or incoming light or incoming photon
which has some frequency nu, and this is my electron, and this electron has rest mass, let's say m naught is its rest mass. Here we will do the relativistic calculation, because incoming energy is the range of किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. सो जब इस रेंज की एनर्जी रहेगी तो आप किस में बात करोगे? यू विल जस्ट गो इनटू relativistic calculation. Okay, okay, so let's go for this. So what will happen? This is my line of reference, this is line of reference, and there is this electron which recoil. So suppose this electron is recoil after the collision, after the interaction, into this direction, and this angle is, let's say, theta. So what is theta? Theta is recoil angle. And there is another radiation which is scattered after the collision of this particular electron, and we have seen that its wavelength is different. Its wavelength is different, and obviously this is your different wavelength. Okay, so its frequency is also different. So let's say its frequency is nu dash, and this is the scattering angle, and this scattering angle is phi. So let us try to go for definition. Phi is what? Scattering angle. दो तरह के एंगल को हम यूज करते हैं ना. So one is a scattering angle. Phi is scattering angle, and theta is what? Recoil angle. कौन recoil कर रहा है? Recoil angle of electron. Scattering angle means जिस एंगल से लाइट रेडिएट कर रहा है आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट. ओके, so this is the story. Now we will just go for conservation of energy and conservation of momentum. So first we will go for conservation of energy. We assume this is my x-axis, and we assume this is my y-axis. So what will be momentum of incoming wave or incoming photon? h nu by c. पता है ना? What is energy? Energy of photon. Relativistic energy of photon is E is equal to P into C. Okay? To C. And what is E? According to Einstein or Planck, E is equal to h nu, and that is your Pc. So what is P? P is equal to h nu by C. Clear है यहाँ तक? Everyone? Yes, okay. Yes, sir. Okay, good. And what will be momentum of this one? This one is h nu dash upon c. And let us assume the recoil momentum of electron is p. Recoil momentum of electron is what? P. So now we will go for conservation of momentum in x direction, and we will go for conservation of momentum in y direction. Y direction. I assume this is my x direction. जिस लाइन से आपकी फोटोन आ रही है, this will be your x direction. Okay, so let's try to go for this. So x direction momentum है ना, x की बात कर रहे हैं. So what is this? Incoming momentum is h nu by c. Okay, and what is momentum before collision? Is 0. सही है? Of the electron will rest, so it will be 0. We assume that electron is rest here. Now what will be component of this in x direction? क्या होगा जरा बताओ? That is nothing but h nu dash upon c cos phi. Phi. Okay, and what will be component of momentum in this direction? p cos Cos theta. theta. ठीक है? क्लियर है ना? ये तो जस्ट +2 में किया होगा आप लोगों ने ऐसा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है? ओके, Yes, sir. गुड. नाउ लेट्स गो फॉर y डायरेक्शन. सो इफ आई एम assuming this is my x axis, so there is not any momentum in y direction. So let's go for momentum in y direction.
So momentum of the incoming light in y direction is 0. But what will be momentum in this direction? क्या होगा जल्दी बताओ? H nu dash C upon sine phi. Very good. So this is my positive axis. So this will be my negative axis. So I can put this as a negative sign. और ये क्या हो जाएगा? P sin theta. ठीक है ये? Agreed? Yes sir. So this is my first equation and this is my second equation. ये derivation बहुत important है. Please इस derivation को आप अवॉइड मत कीजिएगा, है ना? कई लोग होता है कि जस्ट फॉर्मूला लिख दिया और चलो कॉम्पटन इफेक्ट हो गया. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, तभी कोर के प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, ग्रेट. तो आगे जरा देखते हैं क्या हो रहा है कहानी. सो यहां पर एक ट्रिक प्ले करते हैं. ठीक है, इसको मैं इस तरफ ले आ रहा हूं, इसे भी इस तरफ ले आ रहा हूं, तो यहां पर पी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना. सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. 1 हो जाएगा ना. सो कुछ इस तरह का Yes, प्ले कर, सो ट्रिक प्ले करते हैं. डोंट वरी. एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव. देखते रहना, मैं कुछ गलती तो नहीं करता हूं, है ना. दिस स्क्वायर, इसका लेकर के स्क्वायर कर लिया. ठीक है, प्लस, है ना. जस्ट मिनट, ये इधर गया और मैंने इसका स्क्वायर किया. ओके, एंड दिस विल बी एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई होल स्क्वायर. अगर ये करेंगे तो मैं लिख सकता हूं ना पी स्क्वायर. यस या नो? यस सर. लिख सकते हैं. इसको इधर ले गया होल स्क्वायर, इसको इधर ले गया, इसका स्क्वायर किया. सो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज पी स्क्वायर थीटा. चलो मैं आपके लिए ऐसे लिख देता हूं. ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन निकला. इस इक्वेशन को और भी आप जस्टिफाई कर सकते हो. थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर ले तो ज्यादा मजेदार रहेगा. एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h न्यू डैश कॉस फाई, सॉरी एच न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई. एक मिनट, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर फाई. वेट, जस्ट अ मिनट. कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, है ना. फास्ट करने में कैलकुलेशन गलत हो जाता है. एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, सॉरी सी को उधर ले जाएंगे, so इसका मैंने स्क्वायर कर लिया, माइनस 2h न्यू डैश कॉस फाई. ठीक है ना, प्लस एच न्यू डैश साइन फाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग कॉल्ड पी स्क्वायर सी स्क्वायर. लिख सकते हैं इसे. और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर के क्या हो जाएगा? एच न्यू डैश स्क्वायर, है ना. यस सर. होगा. सो फाइनली वी हैव अ वेरी वंडरफुल रिलेशन. एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश होल स्क्वायर माइनस 2h न्यू इंटू एच न्यू डैश cos phi is equal to p square c square. So this is your one equation. ये हमने किसका यूज करके निकाला ये इक्वेशन? किसका यूज किया यहां पर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है ना. c इधर आ गया, p square c square. Now let's try to go for another thing, that is what? Conservation of total energy. यहां पर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं है, यहां कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड दिस इज जस्ट लाइक एज इलास्टिक कोलिजन. कैसी कोलिजन है ये? इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. तो चलो जरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं. यहां तक क्लियर है? हटा दो इसे, इसको रहने दूंगा, बाकी हटाऊंगा. ओके, चलो.
Very good. So now this is very interesting. What will be incoming energy? जरा बताइए. H nu. H nu. किसकी? लाइट की. What will be energy for electron? रेस्ट पे है लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी? सर रेस्ट मास एनर्जी होगी. रेस्ट मास एनर्जी. वेरी गुड. सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? m naught M c naught square. ठीक है. So this square. value is m naught c square. So this is energy before collision. ठीक है. And what will be energy of the light or energy of the photon, energy of the radiation after collision? That value is H nu dash. h nu dash. Very good. Now what will be energy of electron after collision? relativistic energy होगा, है ना? Yes, sir. So what is relativistic energy? क्या होता है बताओ? p square P square by p 2m. square plus m naught square c4. Yes. याद है ये कुछ ऐसा? आपने पढ़ा होगा, STR में पढ़ा होगा इसे. So STR जिनका हुआ होगा उन्होंने तो जरूर किया होगा, है ना? The energy, total energy is what? mc square, which is actually m naught c square root under 1 minus v square c square, which is actually written in term of momentum is p square c square m naught square c4. आप जाके रिवाइज कर सकते हो. ओके. सो दिस ऑल आर सेम थिंग. क्लियर है ये? सो यहां हमने ये लिखा. ये क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर है ये? आपके एग्जाम में पूछता है ये. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. एग्जाम में ये पूछता है, इसके याद कर लो. अगर मैं ऐसे लिखूं एच न्यू माइनस एच न्यू डैश को कुछ ऐसा लिखूं पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर रूट अंडर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. ये बता सकते हो ये क्या है? एनीवन? ध्रुवी बताओ क्या है ये? है आज क्लास में या नहीं है? एनीवन बताओ, कोई भी बताओ क्या है ये? ये पूरी की पूरी चीज क्या है? Kinetic Obviously, this is kinetic energy of electron. energy. This is total kinetic energy minus rest mass energy. Minus So this plus is nothing but what? Kinetic energy है. Kinetic. अब देखो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है कि नहीं. देखो यहाँ पर इनकमिंग एनर्जी h न्यू बाई सी था. आफ्टर द स्कैटरिंग इसकी एनर्जी h न्यू डैश अपॉन सी. तो दोनों से जो बचा हुआ एनर्जी है, इनकमिंग एनर्जी ये है, प्रेजेंट एनर्जी ये है, दोनों से जो बचा हुआ एनर्जी वो कहां गया? वेयर इज दैट एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक वो एनर्जी. इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च हो गया. दैट एनर्जी विल गिव द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल जस्ट मूव एट द एंगल थीटा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा कहां Yes, होता sir. है भाई? ऐसा सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के लिए होता है. वेव के लिए ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं सर. होता है ना? सो हियर दिस इज द फैक्ट. ये जो बहुत इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और अगर आप इसे देख रहे हो तो यहां आप देख सकते हो कि भाई जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला, जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो किसके थ्रू मिला? वो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण मिल रहा है. एग्रीड? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो एग्जाम में आता है व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी. सारे क्वेश्चन में यही आता है. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन. ओके, चलो ये एक फॉर्मूला आप तैयार करके रखोगे. अब इतना ये कैलकुलेट नहीं करना है, आप सीधे ये दोनों को घटाओगे, आप यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है? Yes. है ना? चलो अब जरा ऊपर वाले से थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करते हैं. व्हाट वी हैव समथिंग. इसको ऐसा लिख लें क्या? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश होल स्क्वायर. इसको इधर ले गया और होल स्क्वायर कर रहा है. ये होल स्क्वायर प्लस
एम नॉट स्क्वायर C4 इसका भी स्क्वायर प्लस 2 टाइम एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट C स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? इसे पहले इधर ले गए, ले जा करके एच न्यू यहां पर ऐसा कर लिया, देखो समझ गया। एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये बहुत ही ट्रिकी है, ऐसा कर लिया प्लस एम नॉट C स्क्वायर रह गया, तो इधर से रूट वाला पार्ट हो गया, एंड दिस रूट पार्ट इज व्हाट P स्क्वायर C स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C4। समझ में आ रहा है ये? यस सर। है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों तरफ, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम A इंटू B, ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज नथिंग P स्क्वायर C स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C4। अब देखो ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कैंसिल है ना? और इधर क्या बचा? P स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर है ये? यस सर। है ना? देख लो 1 मिनट और देख लो, फिर आगे का काम करते हैं, बिकॉज एक ही बोर्ड पर बार बार करना है ना, तो इट विल टेक, थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा, ठीक है? सो व्हाट वी हैव एक्चुअली एच न्यू माइनस एच न्यू डैश होल स्क्वायर प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहां देखो P स्क्वायर C स्क्वायर, है ना, हमने क्या ट्रिक प्ले किया कि मोमेंटम वाले से भी P स्क्वायर C स्क्वायर लिख लिया और एनर्जी वाले से भी P स्क्वायर C स्क्वायर लिख लिया। सो एवरीथिंग दोनों इज के टर्म ऑफ न्यू एंड न्यू डैश और cos फाई के टर्म में आ गया, है ना? जी सर। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट इक्वेट दिस टू इक्वेशन। इक्वेट कर सकते क्या? यस सर। So I will equate it here, यहां पर इक्वेट कर लूंगा। सो ऊपर वाला हटा रहा हूं सारा, ये दोनों को रहने दे रहा हूं, ठीक है? These two equation। ठीक है ना? सो व्हाट वी हैव एक्चुअली एच न्यू माइनस एच न्यू डैश होल स्क्वायर दिस वन प्लस 2 टाइम एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट C स्क्वायर is equal to P square C square, and this is also P square C square, and this value is H nu whole square H nu dash whole square minus 2 H nu dash, what is this? Cos phi। cos phi। ठीक है, ये अब हमने काम कर दिया, अब ये सबको हटाते हैं और अपना क्लियर कट कॉन्सेप्ट में आते हैं, फाइनल कैलकुलेशन पास हम पहुंच रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, यस सर। गुड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा मजेदार है ना? और सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम से हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी को समझ पा रहे हैं। इसको ओपन कर ले जरा, ओपन करेंगे तो क्या होगा? यस सर। एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू इंटू एच न्यू डैश प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। क्लियर है ना? दिस विल इक्वल टू यस सर। एच न्यू होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश होल स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कॉस फाई। ऑसम। सर यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर मिस हो गया। हाँ, एम नॉट सी स्क्वायर मिस हो गया। कहाँ मिस हो गया? यहाँ पर मिस हो गया। वेरी गुड सर इस है ना, यहाँ यही मिस हुआ है ना? यस सर। हाँ, ये तो कर दिया, Yes, यहाँ sir. मिस हुआ है। ओके, सो ऐसे लिख दे, है ना? वेट, प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर। अब ठीक है ना? यस सर।
अब ये भाई साहब और ये भाई साहब गए, ये भाई साहब और ये भाई साहब गए, सो वी हैव लिटिल बिट अ क्लीन इक्वेशन, दो हर एक जगह से चला गया, यस। सो व्हाट वी हैव एक्चुअली, और एक एक एच भी हर एक जगह से जा सकता है, यस। सो व्हाट यस सर। वी हैव टू, अभी रहने देते हैं, टू इज गॉन, वी हैव एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश कॉस फाइव। ओके, इसको हम इस तरफ ले आ रहे हैं और न्यू डैश से सारे चीज को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सर यहाँ पे माइनस होगा ना? कहां पर माइनस होगा? Where is minus? This is minus sign. This is minus sign. So this will be minus sign. Okay. Yes, this will be सर हाँ। minus sign. ठीक है ना? So इसको Yes, एक sir. तरफ ले जा रहे हैं और इसे एक तरफ ले जा रहे हैं. What we will get? So we can get something like m naught c square h nu minus h nu dash is equal to h nu into h nu dash 1 minus cos phi। आ सकता है ये? Yes, sir. और एक एक जगह पर से h की वैल्यू, एक h की वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है। यू कैन टेक 1 h देयर एंड यू कैन जस्ट डिवाइड न्यू एंड न्यू डैश, दोनों तरफ न्यू और न्यू डैश को डिवाइड कर देते हैं, यस। कर सकते हैं क्या? सो 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू is equal to h upon m naught c square 1 minus cos phi, और ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी c, सर यहाँ पे तो एच चला गया था। एक h तो रहेगा ना, एक ही h गया ना, हाँ 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 हाँ। एक h रहेगा, एक h चला गया, ठीक है। सो यू कैन टेक h ठीक है, कॉमन एंड देन दिस h विल गॉन, ओके, ठीक है सर। ठीक है। So now we are just multiplying with c on both sides. So what you will get? C upon nu dash is what? Lambda dash minus lambda is equal to h upon m naught c 1 minus cos phi. And this is nothing but change in wavelength. My goodness. This is change in wavelength, and which is directly function of scattering angle. You can check. Delta lambda is equal to h upon m naught c 1 minus cos phi. And you can see how it is just going to match with the experimental result. ये experimental result से किस तरह से match हो रहा है? At the phi is equal to 0, what will be delta lambda? What is at phi is equal to 0? What will be cos phi? Cos phi is 1. 0. Cos phi is 1. है ना? So Yes, what sir. will be delta lambda? 0. Delta lambda is 0 and you are getting one peak. मैंने दिखाया था experimental evidence जो था, I versus lambda for the phi is equal to 0, you have exactly one peak, something like this. And look at when phi is equal to, and when phi is equal to pi, what is value of cos phi? -1. -1, and it will be maximum. Delta lambda will be what? That will be Yes, maximum. Sir. Yes, sir. है ना? Maximum. When it is backscattered कर रहा है जब आपका photon, so this will be just a maximum. So you can see delta lambda is equal to 2h upon m naught c, and which will maximum, and delta lambda is maximum. Okay, so we can see the two peak, और ये एक्सपेरिमेंटल जो आपका जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उससे एग्जैक्टली मैच हो रहा है ईच एंड एवरीथिंग, और ये हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि व्हाई वी आर गेटिंग टू पीक। द अनदर पीक इज नथिंग बट वो एनर्जी चूंकि लूज कर दे रहा है फोटोन, इनकमिंग फोटोन किस चीज में एनर्जी लूज कर दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिकॉइल करने के लिए लूज कर दे रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हो
कि that lambda is going to change. So you can just assume that one massless particle is there. It has some energy, some momentum. It is just going to collide with the electron. Electron is going to move because it is assumed to be free. Easily move कर सकता है. So it is just going to move because we are giving lot of energy to it. So ये move कर रहा है, and after then this radiation will change its wavelength because it is giving some energy to this particular electron, and the rest of energy can be measured at lambda dash, and you will find lambda dash is greater than lambda. That means energy of a scattered wave is less than energy of incoming wave, है ना? Yes, sir. Here you can see that lambda dash is greater than lambda. So this is very important thing. Are you getting my point? Yes, sir. So this is very fundamental experiment which again prove that yes, we can treat light as a particle with the understanding of the photon, which is nothing but the bundle of energy and which is equivalent to h into nu. And this is सर just मेरा a क्वेश्चन था हाँ बताओ. सर, यहाँ पे हम लोग लाइट को पार्टिकल ट्रीट करके सब कुछ रिजल्ट निकल रहे हैं, बिल्कुल. लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे पूछना था, वो था कि सर यहाँ पे जो टर्म न्यू और लैम्डा आता है, ये तो एक वेव की प्रॉपर्टी होता है ना, तो यस ये वेव की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, लेकिन तो आइंस्टाइन समझने की कोशिश करो, लेकिन आइंस्टाइन ने जो कहा जैसे या फिर प्लैंक्स ने जो डिस्कस किया, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू होगा. इससे पहले मैक्सवेल ने क्या Yes. कहा था? मैक्सवेल ने कहा था एनर्जी विल बी जस्ट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड. यस सर, लेकिन उससे तो ये नहीं मिल रहा है ना, हाँ सर, वो तो नहीं मिल रहा है. अगर एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट हो तो फिर फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होनी चाहिए? एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहिए था, जी सर, है ना. लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है. चेंज क्या हो रहा है? चेंज फ्रीक्वेंसी हो रहा है या वेवलेंथ हो रहा है. सो यस सर, आप उसका वेव की प्रॉपर्टी के अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटी छुपी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी वाली क्वालिटी, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो. ओके सर, तो थिंग इज दैट, देखो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिबल टॉक हो गई अभी हमारे लिए. इसलिए सेंसिबल टॉक है, क्या हम लाइट को सिर्फ पार्टिकल कहें या लाइट को सिर्फ वेव कहें? दिस इज द बिगेस्ट टॉक. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, अब आप ये नहीं कर सकते हो कि लाइट पार्टिकल है या फिर लाइट वेव है. ऐसा आप नहीं कर सकते हो. यू हैव टू सी व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व. सपोज आपने लाइट को लिया और उससे आपने यंग डबल स्लिट ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिया और उससे आपने क्या किया? यंग डबल स्लिट ऑब्जर्व किया. तो उस ऑब्जर्वेशन में लाइट की कौन सी थ्योरी काम आती है? वेव थ्योरी. तो वेव थ्योरी. वहां आप बिल्कुल देख रहे हो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस थिंग. सो उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास वेव थ्योरी है, उससे हम उसे समझ पा रहे हैं. लेकिन सेम थ्योरी फेल हो जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एंड दिस इज ऑल्सो फेल्ड इन द कॉम्पटन टू जस्टिफाई कॉम्पटन इफेक्ट. लेकिन वहां पर हम ये जो दूसरे ढंग से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहां पर अगर हम लाइट को एज अ पॉइंट पार्टिकल मानते हैं और उसकी एनर्जी का कुछ तो रीजन होना चाहिए, कुछ तो वेरिएबल होना चाहिए एनर्जी का. जैसे मैक्सवेल ने कहा है कि एनर्जी का वेरिएबल वहां एम्पलीट्यूड है, यहां हम एनर्जी का जो मेन कंपोनेंट है यहां फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं, और जब उसे ले रहे हैं तो ये जस्टिफाई हो रहा है. आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, आप या तो वेव नेचर देखोगे या तो पार्टिकल नेचर देखोगे, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेरिमेंट. यस सर, This is very weird. This is very weird. But you have to accept the law of nature. ये लॉ ऑफ नेचर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और ऑब्वियसली आपकी एज बहुत ही कम है, और और शुरू से ही हम लोग ऐसा सोचते हैं, और एक्चुअली हमारी परसेप्शन को क्लासिकल थ्योरी बहुत ही अच्छे से ड्राइव करता है कि हम जो शुरू से देखते रहते हैं हमें लगता है कि आगे भी वही होगा, है ना. यस सर, इसी कारण हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है. अगर ये थ्योरी पहले आ गया रहता, सपोज, और आया भी था, न्यूटन ने जो कॉपर्सिकल थ्योरी दिया था
वो हाँ। बिफोर द मैक्सवेल उन्होंने दे दिया था, है ना? बट उसे Yes, sir. उसके थ्रू इंटरफेरेंस जस्टिफाई नहीं हो रहा था, तो हमने उसे डिस्कार्ड कर दिया। यस। Yes, sir. और फिर जब इंटरफेरेंस जस्टिफाई हो गया, डिफ्रैक्शन जस्टिफाई हो गया, और फिर पोलराइजेशन जस्टिफाई हो गया, तो वो सारे चीज जो को जब हमने जस्टिफाई किया तो हमने मान लिया कि चलो भाई लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन फिर से Yes, sir. साइंस इवॉल्व करती है, फिर से नए एक्सपेरिमेंट आते हैं, और उसे वो थ्योरी नहीं वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब Yes, sir. जो थ्योरी जस्टिफाई कर रही है, हमें उसी थ्योरी पर जाना हो सकता है कल के दिन कोई नई थ्योरी निकल करके आ जाए, है ना? ये थ्योरी Yes, sir. तो हमें चीजों को समझने के लिए है, बट थिंग इज दैट वी कैन से दैट लाइट इज वेव as well as it is particle. So there is duality come into picture, and yes, this duality is very much visible, very much significance when you are going at the microscopic level. अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हो तो इस ड्यूलिटी को समझ सकते हो। अब जैसे यहीं पर इलेक्ट्रॉन को हम क्या समझ रहे हैं? एज अ पार्टिकल समझ रहे हैं, है ना? Yes, sir. नेक्स्ट वीक की जब हम क्लासेस शुरू करेंगे, देन यू विल सी that there is something like Bragg diffraction from the electron, और वहां पर Yes, इलेक्ट्रॉन sir. बिल्कुल वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है? तब वो वेब नेचर हो जाएगा। तो उस एक्सपेरिमेंट के समय को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की हमें वेव नेचर ही लेनी पड़ेगी। ओके Yes, sir. ओके, सो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। यू पीपल जस्ट गो एंड डिराइव इट विथ योर सेल्फ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अंदर की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, और किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके Okay, sir. Thank you. ओके, जस्ट गो एंड डिराइव दिस थिंग, है ना? Yes, एंड एक होमवर्क देता हूं, इसे जरा कैलकुलेट करके लाना, ठीक है? जस्ट यू विल कैलकुलेट h अपॉन वैल्यू ऑफ h अपॉन m नॉट c इसकी। एंड व्हाट इज m नॉट? rest mass. रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? सो आपको Yes, पता ये तो है, सर क्वांटम वेवलेंथ हो गया। हाँ, दिस इज नॉन एज कॉम्पटन वेवलेंथ, है ना? Quantum सो wavelength. m नॉट c स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, m नॉट c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करोगे? c से मल्टीप्लाई कर दो, c स्क्वायर कर दो, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन में आ गया, और इसका आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा है h इंटू c की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना? Yes, sir. है ना? सो जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? Yes, sir. ओके, सर हाँ सर बताओ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, जो इंटेंसिटी वाले कर्व में सेकंड पीक आ रहा था ना उसको। देखो, आना क्या चाहिए था? आना चाहिए था हमारे पास एक ही पीक, ठीक है? लेकिन पीक कैसा आ रहा था? दो पीक आ रहे थे, एक तो इनकमिंग वेव वाले लैम्डा के ऊपर, और एक दूसरा पीक जो है वो लैम्डा डैश वाले पर, ठीक है? तो ये लैम्डा डैश कहां से आ रहा था इसको कोई नहीं बता पा रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसको क्लासिकल नेचर नहीं Yes, बता रही है। जो मैक्सवेल की जो क्लासिकल नेचर है वो ये कहता है कि इनकमिंग वेव एंड स्कैटर्ड वेव दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था वो ऐसा था। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन, और ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज बेसिकली व्हाट? डेल्टा लैम्डा। और ये भी देखा गया कि ये डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम होती है एट फाई इज इक्वल टू पाई, एंड मिनिमम दैट इज वैल्यू ऑफ जीरो एट फाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। सो इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को कैसे जस्टिफाई किया जाए? पीक जब तभी मिलेगी जब ये लैम्डा डैश और ये लैम्डा दोनों क्या हो? अलग हो। डिफरेंस तो तभी मिलेगा ना। यस सर। तो इस चीज को हमने इस तरह से समझने की कोशिश की। हमने ये कहा कि भाई लाइट आ रही है, सम एनर्जी, वो अपनी एनर्जी, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रही है, ये चीज जस्ट इंपार्टिंग सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। सो जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो अपनी एनर्जी उसकी कुछ कम हो गई, है ना? और जब एनर्जी Yes, कम sir. हो गई तो लैम्डा डैश बढ़ेगा, या तो उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, बिकॉज Yes. एनर्जी इज एच सी अपॉन लैम्डा, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ओके, Yes. और आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है?
क्लियर है ये? यस सर क्लियर। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।